صارفین نے مفت پانی کے مزے لیے سیوریج کا بل بھی ادا نہیں کیا۔ فیصل آبادیوں نے واسا کے 3 ارب 65 کروڑ روپے دبا لیے۔ بلوں کی عدم وصولی سے واسا کا مالی بحران مزید بڑھ گیا۔ واسا نے لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی مگر بات نہ بن سکی۔ واسا ذرائع کے مطابق شہر میں موجود 45% صارفین کی جانب سے ادائیگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت واسا کے 3 ارب 65 کروڑ روپے فیصل آبادیوں نے دبا لیے، جبکہ صارفین نے مفت پانی کے مزے لیے سیوریج کا بل بھی ادا نہیں کیا۔ واسا فیصل آباد سیوریج اور واٹر سپلائی کے بلوں کی وصولی میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ گھریلو صارفین نے 3 ارب 30 کروڑ جبکہ کمرشل صارفین نے بھی 35 کروڑ روپے ادا نہیں کیے۔ دوسری جانب شہر کے کئی علاقوں میں سیوریج کے مسائل ہی مسائل ہیں جس پر صارفین نالاں ہیں۔ بل ادا کرنے والے صارفین بھی واسا کی سروسز سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ ہماری گلی کے جتنے بی بلاک کے علامہ اقبال کالونی کے باسی ہیں 90% لوگ ادھر واسا کا بل دے رہے ہیں۔ میں واسا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ 134 پہ اپنا ہمیں بل بھیجتے ہیں ہم تو وہ پیڈ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یہ ہمیں سزا ہے بل دینے کی کہ گندے پانی میں ادھر روز 24 گھنٹے پانی گندا گٹروں سے ابلتا ہے، بچے ادھر ہی کھیلتے ہیں، ان کو بیماریاں لگ رہی ہیں، پریشانی کا عالم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فیسکو کی 90 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگی بھی کرنی ہے مگر واسا کی جیب خالی ہے۔ ڈائریکٹر ریونیو واسا شہریار کہتے ہیں شہر بھر میں موجود نہ دہندگان سے وصولی کی کوشش کر رہے ہیں۔ چیئرمین ایف ڈی اے نے قسطیں کروانے کی پیشکش بھی کی ہے۔ جو ہماری کمرشل انڈسٹریل ریکوری ہے وہ کافی بہتر ہے۔ انڈسٹریل ریکوری ہماری 95% تک ہے، کمرشل ریکوری ہماری 75% پلس ہے۔ جہاں تک ڈومیسٹک ریکوری کا تعلق ہے یہ ہماری اراؤنڈ اباؤٹ 50% کے قریب جا رہی ہے۔ اس میں جو ایریئرز ہیں لوگوں کی طرف بن چکے ہیں، ان میں کچھ ڈسپیوٹڈ ایریئرز ہیں جس کے لیے ہم ان کے کیسز کو گاہے بگاہے گورننگ باڈی کے اندر لے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ہم ویو اپ کروا سکیں۔ واسا کے مطابق ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کو ایکشن کے حوالے سے رپورٹ بھی بھیجی گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پر واسا کو 100% بلوں کی ادائیگی کی جا رہی ہے وہاں پر بھی سروسز پر سمجھوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ واسا انتظامیہ اپنی سروسز بہتر کرے تاکہ شہری بلوں کی ادائیگی یقینی بنائیں۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ اب چلے گی آپ کی مرضی، صارفین کے لیے واسا کی بڑی آفر، فائدہ اٹھائیں ورنہ میٹر کٹوائیں۔ ایف ڈی اے نے بقایا جات کلیئر کرنے کے لیے صارفین کو ایک ساتھ کی سہولت دے دی۔ چیئرمین ایف ڈی اے شیخ شاہد جاوید کا کہنا ہے کہ صارفین اپنے بجٹ اور مرضی کے مطابق ایک ساتھ کروا سکتے ہیں۔ دسمبر تک کنیکشنز کی رجسٹریشن پر جرمانہ بھی نہیں ہوگا۔ نو ڈاؤٹ ایف ڈی اے کے مسائل ہیں لیکن میرا خیال واسا کے مسائل اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ عام بندے تک واسا کا معاملہ چلتا ہے۔ ایف ڈی اے میں تو وہی ہے جس کے کوئی ایشوز ہیں تو انہوں نے آنا ہے۔ تو میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معاملات چیئرمین صاحب کے دور میں چل رہے ہیں وہ آج کل چھٹی پہ ہیں، وہ جوں کے توں چلتے رہیں، پبلک آئے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے جتنے ہمارے متعلقہ ڈائریکٹران ہیں ان سے میں نے بریفنگ بھی لی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جتنی دیر یہاں بیٹھوں گا تو آنیسٹلی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کروں گا۔ جو فیسکو کا ہے وہ تو ان کو ہم اب الحمدللہ ان کے ساتھ ہمارا ایک شیڈول طے ہو گیا، ہم جو اپنا کچھ نہ کچھ ان کو دے رہے ہیں۔ اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں جب تک گورنمنٹ ہمیں پراپر طریقے سے سبسڈائز نہیں کرے گی یا کوئی ریلیف نہیں دے گی تو فیسکو کا تو مسئلہ میرے نظر میں تو رہے گا۔ جہاں تک ہے بلنگ کا، بلنگ بہتر ہوئی ہے، ہماری ریکوری بھی الحمدللہ ہر ماہ بڑھ رہی ہے۔ بلکہ میں یہاں پر شکریہ ادا کروں گا اپنے فیصل آباد کے لوگوں کا کہ وہ خود ان کو اب اویئرنیس آ رہی ہے، لوگ ہمارے پاس خود آ رہے ہیں کہ یار یہ ہمارا بل اتنے ماہ کا ہے، آپ اس کو انسٹالمنٹ کر دیں۔ یہاں پر ایک اور ضروری بات ہے کہ کسی بھی بندے کو بل آ رہا ہے، اس کے ایریئرز لگ کے آ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کی منشا کے مطابق انسٹالمنٹ کر دیں گے تاکہ لوگ بل۔ فیصل آباد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ قومی خزانے اور ٹیکس گزاروں کو چونا لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ریکارڈ ڈیلیٹ کر کے پراپرٹی مالکان سے رشوت طلب کی جانے لگی۔ عجب کرپشن کی غصب کہانی کے بارے میں بتا رہے ہیں عمیر عصمت اپنی اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پراپرٹی زون کے ملازمین آن لائن ٹیکس ادائیگیوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے میں ملوث، ریکارڈ میں ٹیمپرنگ کر کے قومی خزانے اور ٹیکس گزاروں کو بھاری نقصان پہنچانے لگے۔ جڑاوالا روڈ سرکل کی 50 عمارتوں کا ریکارڈ مبینہ طور پہ آن لائن سسٹم سے ختم کر کے مالکان سے رشوت وصول کی جانے لگی۔
गुज़श्ता सालों के अदाशुदा टैक्सेस का रिकॉर्ड ज़ाया करने की दरख्वास्त DG एक्साइज को जमा करवा दी गई। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद सकलैन के मुताबिक एक्साइज मुलाजमीन पहले से अदाशुदा प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम से डिलीट कर देते हैं, जिसके बाद बोगस नोटिस भिजवा कर हरासा किया जाता है और फिर मामला ख़त्म करने के लिए रिश्वत तलब की जाती है। तहकीकात तो ज़ीरो है जी। इंक्वायरी में जाता रहा हूँ। मोहम्मद सैन है जी, जरावल रोड के ऊपर इंस्पेक्टर एक्साइज का, पिछले 20 साल से लगा हुआ है। वो क्रिप्ट तरीन इंसान है। तो 50 से ज़ायद जो से दरखास्तें हैं वो मैंने प्रूफ भी पेश किया उनको। ये कंप्यूटराइज सिस्टम से ना वो डिलीट करता हूँ ऑनलाइन से, और जो बाकी मालकान है उनको वो मैसेज करता है, बुलाता है, ब्लैकमेल करता है, फिर उसको पैसे लेकर फिर दोबारा वो उसको बहा। और अभी आपको अहम खबर थे, आपको बताएं कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का तबादला, जाहिद हुसैन नए कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकार्रुर और तबादले, साइमा सईद को सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तैनात कर दिया गया। मोहम्मद शहरियार सुल्तान को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात कर दिया गया। सलमान एजाज को सेक्रेटरी ज़कात तैनात कर दिया गया। अली सरफराज हुसैन को सेक्रेटरी खुराक तैनात कर दिया गया है। साकिब मन्नान को सेक्रेटरी आर्काइव तैनात किया गया, जबकि कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का तबादला कर दिया गया है। जाहिद हुसैन को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। लियाकत अली चट्टा को सेक्रेटरी लेबर तैनात कर दिया गया है। सैयद मुबशर हुसैन को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात किया गया। मुजफ्फर खान को स्पेशल सेक्रेटरी CNW से OSD बना दिया गया। सलमान गनी को स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमे खजाना तैनात किया गया। साले सईद को स्पेशल सेक्रेटरी महकमे प्राइमरी हेल्थ लगा दिया गया। अंबरीन साजिद को DG माहौलियात तैनात कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में बड़े तकर्रुर तबादले हुए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का तबादला, जाहिद हुसैन नए कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। साइमा सईद को सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तैनात कर दिया गया। मोहम्मद शहरियार सुल्तान को सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात कर दिया गया है। सलमान एजाज को सेक्रेटरी ज़कात तैनात किया गया। अली सरफराज हुसैन को सेक्रेटरी खुराक तैनात कर दिया गया है। साकिब मन्नान को सेक्रेटरी आर्काइव तैनात किया गया। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का तबादला कर दिया गया। जाहिद हुसैन को कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। लियाकत अली चट्टा को सेक्रेटरी लेबर तैनात किया गया है, जबकि सैयद मुबशर हुसैन को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात किया गया। मुजफ्फर खान को स्पेशल सेक्रेटरी CNW से OSD बना दिया गया। सलमान गनी को स्पेशल सेक्रेटरी बजट महकमे खजाना तैनात कर दिया गया है। साले सईद को स्पेशल सेक्रेटरी महकमे प्राइमरी हेल्थ लगा दिया गया। आपको बताएं कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का तबादला, जाहिद हुसैन नए कमिश्नर फैसलाबाद तैनात कर दिए गए हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले, साइमा सईद को सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन तैनात कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े तकर्रुर तबादले किए गए हैं, कौन कौन से तबादले हुए? जी बिल्कुल, फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले डिवीजनल कमिश्नर साकिब मन्नान जो कि चंद महीनों से फैसलाबाद में अपनी सर्विसेज दे रहे थे, उन्हें सेक्रेटरी आर्काइव एंड लाइब्रेरी विंग जो है वो तैनात कर दिया गया है। और लाहौर में सेक्रेटरी माहौलियात या जिन्हें सेक्रेटरी EPA कहा जाता है, उनको कमिश्नर फैसलाबाद के तौर पर जाहिद हुसैन को जो है वो तैनात कर दिया गया है। और ये देखा जा रहा है कि इससे कबल डिप्टी कमिश्नर का तबादला किया गया, असिस्टेंट कमिश्नर्स का तबादला किया गया, और अब जो थे वो सबसे बड़े लेवल का डिवीजन का जो तबादला जो है वो किया गया है। और इस हवाले से उम्मीद की जा रही है कि नए तैनात होने वाले कमिश्नर जो हैं, चूँकि वो माहौलियात में भी अपनी जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं, तो फैसलाबाद में वो ना सिर्फ सनत के मामले में अपना किरदार अदा कर सकेंगे, बल्कि फैसलाबाद की तामीर और तरक्की के लिए भी जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताज का ऐलान 30 सितंबर को होगा। रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट के अलावा CDs पर भी दस्तयाब होगा। रिजल्ट CD के लिए तालीमी इदारे 200 रुपए में 29 सितंबर तक एडवांस बुकिंग करवा सकेंगे। रवां साल पोजीशन होल्डर्स का ऐलान नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताज का ऐलान 30 सितंबर को होगा। बिल्डिंग मटेरियल महंगा होने से घर बनाना नामुमकिन होने लगा, तज़ीनो आराइश भी मुश्किल हो गया।
लकड़ी की कीमत में होशरुबा इजाफे से ताजिर भी परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। घर बनाने के लिए जहां बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत होती है, वहीं लकड़ी घर की तज़ीनो आराइश के लिए जरूरी है। लकड़ी की कीमत में इजाफे से घर की तज़ीनो आराइश भी मुश्किल हो गई। इम्पोर्टेड लकड़ी की कीमत में 1000 रुपए तक का इजाफा हो गया। सदर टम्बर आयरन मार्केट मिर्जा अशरफ कहते हैं, इम्पोर्टेड लकड़ी 1000 रुपए फी फिट, जबकि पाकिस्तानी लकड़ी 300 रुपए फी फिट तक महंगी हो चुकी है। लकड़ी की बात कर रहे हैं, तकरीबन ये 2-3 महीने से जो इम्पोर्टेड लकड़ी है ना, ये तो डॉलर की वजह से आ रहा है कि डॉलर बहुत ही ऊपर जा रहा है। डॉलर की वजह से जो हमारी ऐशवुड की लकड़ी है या महागनी की लकड़ी है या येलो पैन एक लकड़ी है, ये तकरीबन 1000 रुपया फुट महंगी हो चुकी है। लकड़ी की कीमत में इजाफे से शहरी और ताजर परेशान हैं। मिर्जा अशरफ मुगल कहते हैं, डॉलर की कदर बढ़ने से महंगाई में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी लकड़ी है, इसमें भी तकरीबन 200-300 रुपये फुट का रेट का फ़र्क आया है। इसकी वजह है कि ये डॉलर की वजह से हमारे रुपए की कदर बिल्कुल कम हो रही है और जो आए रोज़ महंगाई है, आपने देखा कि ये 15 तारीख को 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बता रहे थे, ये 5 रुपये पर लीटर तेल बढ़ा दिया है। उसकी वजह से भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। इम्पोर्टर लकड़ी ऐशवुड 5000 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए तक पहुंच चुकी है। महंगी लकड़ी 4500 रुपए से बढ़कर 5500 रुपए फी फिट हो गई, जबकि पाकिस्तानी देयार की कीमत 4500 रुपए फी फिट से बढ़कर 4800 रुपए फी फिट हो चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग में खाद की किल्लत का बहरान सर उठाने लगा। डीलर्स खाद को ब्लैक में फरोख्त करने लगे। किसान खाद के लिए मारे मारे फिरने लगे। महकमा ज़राअत ने तमाम स्टाफ को फील्ड में खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुल्क में गैस की किल्लत, खाद फैक्ट्रियों को गैस की फराहमी मुअत्तल, किसान पर भारी पड़ गई। यूरिया खाद की प्रोडक्शन बंद, डीलर्स ने यूरिया और डीएपी की ब्लैक में फरोख्त शुरू कर दी। महकमा ज़राअत ने तमाम फील्ड ऑफिसर्स को डीलर्स के गोदामों पर कार्रवाई की हिदायत कर दी। किसान खाद के हसूल के लिए ताहाल परेशान है। मार्केट की समझ ही कोई नहीं लगती पई, जेड़ा दौर इमरान खान का चल रही है, कोई समझ नहीं आती पई। जी 1000 की शायद वो 2000 तक पहुँच गई है जी। क्या करिए जी, नाजुक दौर आ गया जी। हूँ मैं बरसन का बीज लेना आया जी, अगे जो 150 का मिलता है वो हूँ 350 का मिल रहा है। दूसरी जानिब खाद डीलर्स का कहना था, खाद की सप्लाई मुअत्तल जरूर हुई, मगर स्टॉक इतना जरूर मौजूद है कि रबी का सीजन इसमें मुकम्मल हो जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा वक्त तक मुअत्तल रही तो बहरान का सामना करना पड़ सकता है। सप्लाई के अंदर थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। उस बिना पे हम अल्लाह की रहमत से स्टॉक को फरोख्त करते हैं। कस्टमर आते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे से कंपनी की तरफ से थोड़ा सा आ जाता है, वो कर रही है, वो क्यों कर रही है ये नहीं पता कि वो ब्लैक की वजह से कर रही है। ये सारे कंपनी के अपने मामलात है। 1 माह 1.5 माह पहले तो प्रोडक्शन कंपनियों की अच्छी थी, यहाँ मकामी वेयर हाउसेज पे भी माल मिल जाया करता था हमें, और अभी तकरीबन पिछले 1 माह से थोड़ा सा शॉर्टेज का सामना है। लेकिन चूंकि सीज़न ख़त्म होने को है तो इस वजह से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मार्केट में लोगों के पास बड़ी तादाद में स्टॉक मौजूद था, तो लोग सेटिस्फाई हैं, कस्टमर हमारे सेटिस्फाई हैं, उन्हें प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत ने भी फील्ड स्टाफ को हर जिला के डीलर्स की दुकानों पर सब्सिडाइज खाद की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के अहकामात दिए हैं। उनका कहना था, किसानों से मालूमात लेकर महंगी खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ तैयब सैफ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, गुर्बत का खौफ या फिर बदबख्ती की इंतहा। फैसलाबाद में बेरहम बाप 3 कम से नाबीना बच्चों को लावारिस छोड़कर गायब हो गया। बच्चे अपनी गरीब मां के साथ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पापा मेरा छੱਡ के चल गया, अच्छा इसलिए कि ਇਹ ਨਬੀਨੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾਈਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸੋਹਣਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਦੁਗੀਆਂ ਦਇਆ सिराए। आज मैं लाठियांवाला की एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिसका बाप अपने 3 बेटों को सिर्फ इस वजह से छोड़ गया कि उनको दिखाई नहीं देता। बच्चे जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं। छोटा बच्चा जो है नुमान, वो मेरे साथ मौजूद है। उससे जानते हैं, नुमान कितनी मुश्किल होंदी है, पापा का तो छड़ गया कि मसला वा किदा रहना सारा दिन? चाचू कल्ले रहीदा, चाचू इकल्ले सी रहीदा। ਮੰਮਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ
11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ 2 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ। 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀਨੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬ ਦੀ ਠੋਕਰ ਖਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਧਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਚਾਚੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ कि मम्मा नु काम ते ना जान दियो। अच्छा। मासूम घरेलू मुलाजमों पर मालिक के मकान का बेटी के साथ मिलकर तशद्दुद, बाल काट दिए, जिस्म को गर्म चिमटे से दागदार कर दिया, गर्दन पर भी नाखून के निशानात। सोनिया मेडिकल के बाद अदालत में पेश, मुलजिम अब्दुल रज़ाक को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर के इलाका 40 कोठिया में मालिक मकान का बेटी के साथ मिलकर घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया। मालिक मकान शेख अब्दुल रज़ाक ने बेटी सोनिया के साथ मिलकर 14 साल नसरीन पर तशद्दुद किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा मालिक मकान समेत बेटी के खिलाफ दर्ज करवा दिया। मुकदमे के मुताबिक 14 साल नसरीन गुज़श्ता 4 सालों से शेख अब्दुल रज़ाक के घर काम कर रही थी। मालिक मकान ने बेटी के साथ मिलकर 14 साल नसरीन के सर के बाल काटे और जिस्म को गर्म चिमटे से दागा। 14 साल नसरीन की गर्दन पर नाखूनों के भी निशानात हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने 14 साल नसरीन का मेडिकल करवाने के बाद इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया, जहां घरेलू मुलाजिमा नसरीन ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। कल तकरीबन 6 बजे हमें थाना सदर की पुलिस से ये इत्तला मौसूल हुई कि 15 पे कॉल चली थी, जिसमें एक घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद करके उससे घर से बाहर निकाल के गेट बंद कर लिया गया। उसके मुताबिक सदर थाना की पुलिस ने स्पीडी एक्शन लिया है, बच्ची को वहाँ से ले आए और उन्होंने हमें इतला की। तो मैं जब मौका पे वहाँ पे पहुँची हूँ, बच्ची के हाथ में बाल मौजूद थे, जो बच्ची के मुताबिक वो घर का जो मालिक है शेख अब्दुल रज़ाक, उसकी बेटी सोनिया ने उसे जब बुरी तरह मारा तो उसके सर के बाल फ्रंट से खींचे हैं। सदर पुलिस ने मुलजिम शेख अब्दुल रज़ाक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी बेटी सोनिया अबूरी जमानत पर है। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। फैसलाबाद में जुराइम बढ़ने लगे, पुलिस के वसाइल महदूद, क्राइम सीन यूनिट के पास सिर्फ एक मोबाइल वैन मौजूद, 60 वारदातें रोज का मामूल, हर जगह पहुंचना नामुमकिन होने लगा। फैसलाबाद में जराइम नॉन स्टॉप जारी हैं। फैसलाबाद में रोजाना औसतन 60 के करीब वारदातें रिपोर्ट होती हैं। इसी तरह जाए वकूआ से शवाहद और फिंगरप्रिंट्स उठाने के लिए भी सिर्फ एक मोबाइल वैन मौजूद है। क्राइम सीन यूनिट वैन पर 3 शिफ्टों में सिर्फ 3 ASI तैनात हैं। एक ही वक्त में मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली वारदातों पर पहुंचना क्राइम सीन यूनिट के लिए नामुमकिन है। फिंगरप्रिंट हासिल ना हो सकने से डाकुओं की बड़ी तादाद पुलिस की पहुंच से दूर है। क्राइम सीन यूनिट की मोबाइल वैन और अमला बढ़ाया जाए तो वारदातों में वाज़ेह कमी हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद शुएब मजीद के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में डिजिटल स्क्रीन नस्ब मकसद कैदियों के मुतालिक तफसीलात से आगाह रखना है और किसको कब मिलनी है रिहाई, किसकी कितनी है सजा बाकी, किस कैदी पर लगा है कौन सा एतराज, सब मालूम हो सकेगा, लेकिन कैसे? तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कौन सा कैदी रिहाई पाएगा और किसकी है सजा बाकी, और किस कैदी पर कौन सा एतराज लगा। रिहाई के मुंतजिर कैदियों के प्यारों के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद के गेट नंबर 2 पर डिजिटल स्क्रीन लगा दी गई। कैदियों के नाम बमाए तस्वीर स्क्रीन पर आएंगे। अपनी नोयत के मुनफरद प्रोजेक्ट से कैदियों के लवाहिकीन मुस्तफीद हो सकेंगे। डिजिटल स्क्रीन पर रिहाई पाने वाला कैदी का नाम और तस्वीर जाहिर होगी। एतराज लगने पर रिहाई पाने वाले कैदी की तफसील भी दी जाएगी और गेट पर अपने प्यारों का इंतजार करने वाले लवाहिकीन को ज़हनी खौफ से छुटकारा मिलेगा। IG साहब के हुक्म के मुताबिक और लास्ट जो मीटिंग हुई थी सेशन जज साहब की, उधर भी ये मामला उठाया गया था कि उनके जो लिस्ट वाला मामला है ना वो सही नहीं है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और एयरपोर्ट से ये आइडिया हासिल किया गया कि जिसकी रिहाई हो रही है उसकी उधर से जब वो बंदा अपना थंब लगाएगा, इधर उसका नाम, उसकी पिक्चर, उसका बाकी सारा पार्टिकुलर्स आ जाएंगे और इससे उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी, ताकि बंदे जो बाहर आए हैं उनके लिए लवाहिकीन उनको बहुत आसानी हो जाएगी। लवाहिकीन की जानिब से इस प्रोजेक्ट को सराहा गया और पंजाब भर की जेलों में यही निजाम राज करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। RPO फैसलाबाद की खुली कचहरी, साइलिन मसाइल सुनाते रहे, खवातीन ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। इमरान महमूद ने मुतल्लिका अफसरान को मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी कर दिए।
इमरान की दफातर में मुलाकात न करने का गिला करने वाले नाराज शहरियों के लिए आरपीओ दफ्तर में रोजमर्रा पर खुली कचहरी का इनाकात कर दिया गया। आरपीओ फैसलाबाद इमरान महमूद ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाई। खवातीन समेत साइलिन की बड़ी तादाद अपने मसाइल लेकर आरपीओ दफ्तर पहुँच गयी। आरपीओ इमरान महमूद ने मसाइल सुने और मुतल्लिका अफसरान को फौरी तौर पर उन्हें हल करने की हिदायत जारी की। आरपीओ का कहना था कि शहरियों के मसाइल सुनकर मुतल्लिका अफसरान को इंक्वायरियां सौंप दी हैं। शहरियों की शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा और मेरिट पर इंसाफ फराहम करेंगे। तफ्तीश की तब्दीली के मुतल्लिका है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा या उनमें कोई बंदे गिरफ्तार नहीं हो रहे, तो उसके मुताबिक जो है मैंने हायर लेवल के ऊपर एसपी सीपीओ साहब के ऊपर जो है उनको एक्शन लेने का कहा है। कहीं पर टीम बना दी है, कहीं पर उनको टारगेट दिया है, कहीं पर इंक्वायरी होनी है, उसी के मुताबिक जो अहकाम दिए हैं। और हम ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि यहाँ से अहकाम जारी होगी उसके बाद अल्लाह खैर से ये जो है हम लोग इसका पूरा डाटा मेंटेन रखेंगे और जो टाइम लिमिट्स दी हैं जब वो टाइम लिमिट्स ख़त्म होंगी तो हम इसका जवाब जो है उसको भी देखेंगे और कोशिश करेंगे लोगों को मैक्सिमम रिलीफ जो है मिल सके। शहरियों ने मुतालबा किया कि रोजमर्रा की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनाकात होना चाहिए। कैमरामैन अली हसन के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए गवर्नर पंजाब के अहलिया कोसा परवीन सरवर का दौरा टोबा टेक सिंह चक 297 में लगने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहलिया परवीन सरवर ने टोबा टेक सिंह का दौरा किया, जहां उन्होंने चक 297 में लगने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। अहले इलाका की जान से फूलों की पत्तियां निशावर करके इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर परवीन सरवर का कहना था कि गवर्नर पंजाब का पूरे सूबे को साफ पानी मुहैया करने का मिशन है, जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरवर फाउंडेशन पे ऊपर सरवर साहब का पैशन है, उनकी टारगेट थी इस सर्वर फाउंडेशन जो सबसे ज़्यादा पानी पे काम करेगा, तो उन्होंने मुझे टारगेट दी है 2.5 मिलियन की बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वो मैं टारगेट पूरी कर सकूँ ताकि हमारे बहन भाइयों को साफ पानी मिले। परवीन सरवर ने मजीद कहा कि जिला टोबा आबाई इलाका है, इसकी तरक्की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए भरपूर काम हो रहा है। पूरे पंजाब में हम नहीं और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पानी लगा रहे हैं। आबे पाक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी वो भी इस पे काम कर रही है। हर चीज़ को एक टाइम लगता है, एक वक्त लगता है, फिर उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, फिर उसको मेंटेन कैसे करना है। तो हमने पूरा मैप आउट किया हुआ पूरे पंजाब को, हमने बलूचिस्तान में भी 6 लगाए हैं, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। परवीन सरवर की आमद पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। ट्यूब रिसर्च फैसलाबाद के मुलाजमीन की हुकूमती प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल, मेन गेट को ताले लगा दिया गया, काम बंद करके एहतजाजी कैंप लगा लिया। ज़रूरी साइंसदानों की भी कैंप में शिरकत। ट्यूब रिसर्च मुलाजमीन हुकूमती निजकारी पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज, मुलाजमीन सड़कों पर आ गए, भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, वजीर आजम के मुआवने खसूसी जमशेद इकबाल चीमा को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। पिछले 6 महीने से सरापा एहतजाज है। ये जो हमारी हुकूमत है ये ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे इदारों की तबाही कर रही है। ये वो इदारा है जिसने पिछले 10 साल में 200 के करीब वेराइटीज दी हैं, जिनका इम्पैक्ट जो है वो बिलियंस में है, और ये इस इदारे को ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे तबाह करने जा रहे हैं। ये हमारे इदारे का 100 साल पुराना सेटअप है और इसी सेटअप की वजह से, इसी सिस्टम की वजह से ये इदारा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पेस्टिसाइड जो हमारा सेक्टर है उसके हवाले से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था अपनी पॉलिसी के अंदर कि रिसर्च लैब्स बनाए जाएंगे डिवीजनल लेवल पे, जो कि पेस्टिसाइड प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट करता है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। उस हवाले से आज तक ना कोई प्रोजेक्ट सबमिट हुआ, ना मेरी नज़र से गुजरा। मुलाजमीन का कहना था कि ट्यूब रिसर्च की कारकर्दगी तमाम तहकीकाती इदारों से बेहतर है। रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद भी मुलाजमीन के कैरियर से खेलना इंतहाई खतरनाक सूरत हाल को पैदा कर रहा है। प्राइवेट चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को हायर करने से फायदे के बजाय नुकसान होगा। ये वो हमारा इदारा है, यहाँ जो गंदम की वैरायटी होती है और हज़ारों किसान इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, और ये गवर्नमेंट चाहती है कि ये हम एक किसी प्राइवेट कंपनी को ये दें, और ये जो गवर्नमेंट किसानों को फ़ायदा हो रहा है ये गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियों को हो और वो उनका पैसा जो है वो हमें मिले। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गुजारिश करता हूँ कि खुदा राया ये अयूब रिसर्च की तबाही के लिए कुछ सोचें, इसको तबाह ना किया जाए, इसको प्राइवेट ना किया जाए। ये हमारे किसानों की रीढ़ की हड्डी है। अयूब रिसर्च एक ऐसा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान के किसानों को बीज नए वैराइटीज देता है। मुलाजमीन का मौक़िफ़ है कि ट्यूब रिसर्च रियासती असासा है, इसे हुकूमत के हाथों बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। पर तो खवातीन दिमागी अमराज और बच्चे चिड़चिड़ापन का शिकार क्यों हो रहे हैं, प्रोफेसर इम्तियाज डोगर ने वजह बता दी। डॉक्टर्स को मुफीद मशवरे दिए, ट्रेनिंग भी की।
ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ہیلتھ سینٹر میں فیصلاباد کی دیہی آبادی میں مقیم دماغی امراض کا شکار افراد کے لیے ٹریننگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی ایچ کیو اسپتال شعبہ نفسیات وارڈ کے انچارج پروفیسر ڈاکٹر امتیاز ڈوگر نے ڈاکٹروں کو لیکچر دیا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہسپتالوں الائیڈ اور جنرل ہسپتال غلام احمد آباد کے ڈاکٹر شریک ہوئے۔ پروفیسر امتیاز ڈوگر نے کہا دماغی امراض کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس پر پاکستان سائیکیٹرسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان سائیکیٹرسٹ سوسائٹی کے تعاون سے ہم نے ڈاکٹرز کو کال کیا تھا، جن کو ہم پرائمری کیئر فزیشنز کہتے ہیں، جو ڈفرینٹ ٹی ایچ کیوز میں کام کرتے ہیں، تاکہ ان کو ہم کامن مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کے بارے میں، جس میں ڈپریشن ہے، سائیکوسس ہے، ڈرگ ایبیوز ہے، ڈیمینشیا ہے، ایون سوئسائڈ کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور بچوں کے پرابلم سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے، تاکہ وہ اس کی اسیسمنٹ سیکھ لیں اور ان کی بہتر طریقے سے مینجمنٹ کر سکیں، اور الٹیمیٹلی اس سے مریضوں کو فائدہ ہو اور ان ڈاکٹرز کی بھی کیپیسٹی بڑھے ان مریضوں کو سروس دینے کے لحاظ سے۔ پروفیسر امتیاز ڈوگر نے مزید کہا مہنگائی اور بے روزگاری سے مرد حضرات پریشان ہیں اور وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ خواتین گھریلو مسائل کے سبب دماغی بیماری میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ موبائل فون کے استعمال سے بچے چڑچڑاپن کا شکار ہوتے ہیں۔ خواتین میں تو سٹریس ریلیٹڈ، جو ہاؤس سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ہے اور باقی چیزیں ہیں۔ یوتھ میں ہم دیکھیں تو ڈرگ ایبیوز اور یہ ریلیشن شپ کے پرابلم زیادہ آ رہے ہیں، اور چھوٹے بچوں میں اگر ہم دیکھیں یہ جو ان کا سیل فون کا یوز ہے اور اس سے ریلیٹڈ ان کا اریٹیبلٹی ہے، چڑچڑا پن ہے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ جسمانی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے بچے اور پیرنٹس، وہ بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی ٹریننگ کے بعد دیہی آبادی کے مقیم دہلیز پر ہی علاج کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ کیمرہ مین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔